رات کے سائے ڈل رہے تھے، کمرے میں بیٹھا وجدان مسلسل اپنے فون پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ میرا کو منانے اور ہر بات کرنے کے لیے لگاتار کالز کر رہا تھا، مگر دوسری طرف سے ایک بھی کال وصول نہیں کی گئی تھی۔ یہاں تک کہ جتنے بھی پیغامات اس نے بھیجے تھے وہ بھی بنا دیکھے انڈیڈ پڑے تھے۔ وہ شدید پریشانی اور الجھن کے عالم میں فی الوقت صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سینے میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ دفتر اس کے فون کی اسکرین پر ایک بار پھر روشنی ہوئی۔ اس پر شاہزین کا نام جگمگانے لگا۔ وجدان نے اپنے مضبوط جبڑے پنچے، اس کا موڈ بالکل نہیں تھا بات کرنے کا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے کال کاٹ دی، مگر شاہزین نے ہار نہ مانی اور فوراً دوبارہ کال ملا دی۔ وجدان نے گہری چھوٹی سانس بھری اور فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ سیدھا رکھے انداز میں بولا۔ فون کے دوسرے پاس شاہزین کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے اور کشادہ ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ اس وقت میر مینشن کے کشادہ لاؤنج میں بیٹھا ہوتا، جہاں مراد قاسم اور خاندان کے دیگر افراد موجود تھے۔ اگر سب موجود نہ ہوتے تو شاہزین یقیناً وجدان کی تلخی کا اپنے روایتی انداز میں جواب دیتا، مگر فی الحال اس نے ضبط سے کام لیا۔ تھوڑی بہت سر میں ہے، لیکن ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ۔ اس نے ماحول کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے مذاق کیا۔ اس کے اس غیر سنجیدہ مذاق پر وجدان کو شدید کوفت اور تپش ہوئی۔ فون کیوں کیا ہے؟ وہ اپنے تیش پر بامشکل قابو پاتے ہوئے بولا۔ کب جا رہے ہو یوکے؟ شاہزین نے اب اصل اور کام کی بات پوچھی۔ پتہ نہیں، وجدان نے بوجھل مگر دباؤ بھری دھیمی آواز میں جواب دیا۔ شاہزین کو فوراً احساس ہوا کہ دوسری طرف حالات معمول کے مطابق نہیں اور کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا۔ وہ خاموشی سے لاؤنج کے نرم صوفے سے اٹھا اور قدم بڑھاتا ہوا باہر کھلے ٹھنڈے لان کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا ہے یار؟ شاہزین نے اب کے تمام مذاق بالائے طاق رکھتے ہوئے بے حد نرمی اور فکر سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وجدان کا لہجہ اب بھی بالکل روکھا اور سرد تھا۔ بتاؤ، چند منٹ کے لیے بھول جاؤ کہ میں تمہارا بھنوئی یا کوئی رشتہ دار ہوں، دوست سمجھو۔ شاہزین نے کھلے دل سے مخلصانہ پیشکش کی اور لان میں پڑی لوہے کی کرسی پر آن بیٹھا۔ تمہاری اس غیر ذمہ دارانہ صلاحیتوں کی وجہ سے میری زندگی میں آگ لگی پڑی ہے، وجدان اب کے اپنے اندر کا سارا بال نکالتے ہوئے غصے سے بولا۔ شاہزین نے دھک سے فون کان سے ہٹایا اور شدید حیرت سے فون کی چمکتی اسکرین کو گھورا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے یا سر پر کوئی چوٹ لگ گئی ہے؟ شاہ نے تعجب اور الجھن سے پوچھا۔ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا سب کو عزل سے تو اسے ادھر ہی چھوڑ جاتے تم۔ ایشان بھی تو آئی تھی، وجدان نے دبی آواز میں گرجا۔ شاہزین نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے وجدان کی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ کس کو مسئلہ تھا عدل سے؟ اس نے جانچتی باریک آواز میں پوچھا۔ وجدان ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ شاہزین لمحوں میں اپنی بیوی کی مخبری کی پوری کڑی سمجھ گیا۔ کس کو بتایا اس نے تمہیں؟ وہ بالکل صاف گوئی سے بولا۔ کاش مجھے بتایا ہوتا۔ وجدان کی تلخ آواز گونجی اور شاہزین فوراً سمجھ گیا کہ بات حویلی کے بڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ یار یہ عورتوں کے مسئلے میری سمجھ سے بالکل باہر ہیں۔ شاہزین نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ میں ممی کو سمجھاتا رہا ہوں، لیکن وہ حرین کی وجہ سے عائزل کو مسلسل طعنے دیتی رہی اور میں ان دونوں کی جنگ میں درمیان میں بری طرح پس کر رہ گیا تھا۔ اب کہیں جا کر سکون کا سانس آیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے فون کیا۔ وجدان شدید اکتاہٹ اور بیزاری سے بولا۔ ہاں، حالات اب کچھ ٹھیک ہوئے ہیں تو چچا جان واپس یوکے جا رہے تھے، تو تم بھی جا رہے ہو، تو میں نے سوچا تم دونوں اکٹھے ہی چلے جاؤ۔ تمہاری فلائٹ کا پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ شاہزین نے مدھم آواز میں مدعے کی بات کی۔ وجدان نے بے چینی سے اپنی پیشانی اور الجھے ہوئے بال پھیلائے۔ حویلی کی کشیدہ ماحول اور مہرا کی خاموشی کے بیچ وہ اندر ہی اندر اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ فرائیڈے کو وہ چند دھموں کی سوچ بچار کے بعد بالآخر بولا، اور وہ اپنی پہلے سے بک کی فلائٹ پر ہی جائے گا۔ اس نے ذہن بنا لیا تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے، باقی ڈیٹیلز بھیج دینا اور عائزل کی فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے اب، شاہزین نے تسلی دینے والے انداز میں کہنا چاہا، مگر وجدان نے بنا کوئی بات سنے بغیر ایک لفظ کہے بغیر کال کاٹ دی۔ اگلی صبح جب حویلی کے کشادہ ڈائننگ ٹیبل پر تمام افراد ناشتے کے لیے جمع ہوئے تو وجدان کی کرسی خالی تھی۔ سبھی نے اس کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کیا۔ نگینہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ان کا بیٹا جو کبھی ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی عقیدت سے سر جھکائے بغیر نہ جاتا تھا، آج نہ صرف ناشتے پر آیا تھا بلکہ ان سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ ان کے اپنے رویے نے ان کے بیٹے کو ان سے دور کر دیا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود وجدان سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر مختلف معاملات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ یوکے میں ایک نئے گھر کی ڈیل کے سلسلے میں آنر سے رابطے میں تھا، اور وہ گھر بھلے ہی سائز میں چھوٹا تھا مگر بے حد پرتعش اور جدید اور خوبصورت تھا۔ آج آخرکار تمام ڈیٹیل ڈاکومنٹ سائن کر کے اس نے وہ پراپرٹی اپنے نام خرید لی تھی۔ تھکن اور بے چینی کے زیر اثر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور ایک بار پھر مہرا کا نمبر ملا دیا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی دوسری طرف مسلسل بیل جاتی رہی اور فون نہ اٹھایا گیا۔ اف مہرا،
खराब और शदीद झंझनाहट होता है। इसमें फ़ोन बेड पर फेंकता हुआ शावर लेने चला गया। चलम बाद जब वो बिल्कुल तैयार होकर जनान खाने में दाखिल हुआ था, वहाँ सभी अफराद मौजूद थे। वो नाश्ता किए बगैर खामोशी से अपने कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा गया। वैसे की तरह ना तो इसने नगीना बेगम की अकीदत और एहतराम से मुलाकात की, ना इनकी तरफ देखा, बल्कि उन्हें मुकम्मल नज़रअंदाज करता हुआ एक लफ्ज़ कहे बगैर वहाँ से निकल गया। नगीना बेगम अपने बेटे का ये इंतहाई सर्द और बेगाना रवैया देखकर दिल पर हाथ रखे तड़प कर रह गई। फरदान ने डेरे पर आते खुद को मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ कर लिया था ताकि जैन को ज़रा बता सके। ये दान दूर से तासुर और हमदर्दी से इसे देखता रहा, क्योंकि इस वक्त फरदान अपने भाई को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। कामों के दौरान भी इसकी बेचैनी वादिया थी। वो मुसलसल मीरा की नाराज़गी और दूरी को लेकर शिद्दत से परेशान था। वो फ़ोन नहीं उठा रही थी और अब तो दिल में एक खदशा भी पहना था कि यूके पहुँचने पर वो उसे मिलेगी भी या नहीं। इस नागवारी और झंझलाहट में मुलाजमों पर बात बात पर उलझ रहा था। यज़दान बस खामोशी से सज ढक कर रह गया। शाम के वक्त जब हवेली लौटे तो जनान खाने में मामूल की तरह तमाम अफराद मौजूद थे। समीन बेगम ने जावियान को गोद में लिए बैठी थी, उससे प्यारी प्यारी बातें करके खिलखिला रही थी, जबकि जावियान भी अपनी छोटी छोटी मुस्कुराहटों से इनकी तरफ देख रहा था। वजदान ने बोझल कदमों से दाखिल होकर दूर से इस्लाम किया और खामोशी से सोफे पर आन बैठा। ना वो हमेशा की तरह माँ के पास गया, ना इनके हाथ चूमे। वो तो उनसे नजरें मिलाने से भी कतरा रहा था। समीन बेगम ने वक्त और माहौल की नज़ाकत को फ़ौरन भांप लिया। उन्होंने नरमी से जावियान को हुरैन के सुपर्द किया। कल जा रहे हो? समीन बेगम ने बेहद प्यार और नरमी से पूछा। जी। वदान ने नहायत संजीदगी से जवाब दिया। इनकी नज़रें हनूर फ़ोन की स्क्रीन पर टकी हुई थी। पैकिंग हो गई सारी? नहीं, अब कर लूँगा। इसके खुश्क से जवाब पर समीन बेगम अपनी जगह से उठ खड़ी। चलो मैं मदद कर देती हूँ तुम्हारी। वदान ने बेख्तियारी में एक नज़र नगीना बेगम की तरफ देखा, जो अपने चेहरे पर चादर का पल्लू रखे खामोशी से आंसू साफ कर रही थी। वदान के अंदर एक शदीद बेचैनी और कसक उभरी। वो फ़ौरन उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। समीन बेगम में शफ़क़त से इसके पीछे कमरे में चली आई। कमरे में आते समीन बेगम ड्रेसिंग की तरफ बढ़ने लगी। बैठे मोरे में ला देता हूँ, तरतीब से रखती जाएँ, वो मदम आवाज़ में बोला। समीन बेगम सोफ़े पर बैठ गई। वजदान ने सूटकेस खोल कर सोफ़े के सामने वाली मेज़ पर रखा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़कर अपने कपड़े और दीगर सामान निकालने लगा। समीन बेगम एक एक करके कपड़े एंगल से उतारते और सिक्के से तय करके सूटकेस में रखती गई। वजदान का बुझा हुआ मुरझाया हुआ चेहरा बखूबी देख रही थी। वो बात नहीं कर रही, उन्होंने इंतहाई नरमी से पूछा। वजदान ने बस इस बात में सर हिला दिया। दोबारा कपड़े लेने ड्रेसिंग की तरफ मुड़ गया। गुस्से में होगी, वहाँ अपने रहने के लिए घर का इंतज़ाम कर लेना। समीन बेगम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। इनका इशारा बिल्कुल वाजिया था कि मेरा का कोई पता नहीं हो सकता, तुम्हें घर के अंदर कदम भी ना रखने दे। वजदान इनकी इस बात पर एक लम्हे को चौंका, फिर इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। मैं वैसे भी इनके घर नहीं रहता मोरे। इसकी बात पर समीन बेगम बेबस हंसती। वो कमरे की संगीन फिजा में एक लम्हे के लिए हल्की सी मिठास घुल गई। प्यार से मनाना मान जाएगी। समीन बेगम ने इसके शाने पर हाथ रखते हुए धीमे से कहा, हुरैन से भी ऊपर की चीज़ है, शायद अब तक मुझे ज़िंदगी से निकालने का इंतज़ाम भी कर लिया हो। इसने मजाक के अंदाज में बोला था, मगर इसकी सी आंखों में छुपी परेशानी और तपिश बिल्कुल वाजिया थी। समीन बेगम के लबों पर मचलती मुस्कुराहट मुँह में सिमट गई। अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, तुमने कौन सा दूसरा निकाह किया है, मान जाएगी। समीन बेगम ने इसका परेशान चेहरा देखकर दिलासा देते हुए कहा, और अपनी मोरे को मनाए बगैर मत जाना यहाँ से, कुछ भी हो वो तुम्हारी माँ है, बहुत परेशान है। समीन बेगम ने इजाफा किया। वह जानबूझ खामोशी से इस बात में सर हिलाकर रह गया। सामान की पैकिंग मुकम्मल करने के बाद वो कुछ देर यूं ही सोफे पर बैठा रहा, फिर एक गहरा सांस लेकर उठा और अपने कमरे से बाहर निकल आया। डिनर के बाद सब जनान खाने में मौजूद थे। सुबह वजदान को यूके के लिए निकलना था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी कसक और बेचैनी उठी थी। वो माँ को यूँ नाराज़ और रंजीदा छोड़कर हरगिज़ नहीं जान सकता था। वो कुछ देर खामोशी से वहाँ बैठा रहा, माहौल का जायज़ा लेता रहा। जब जुरेज़ और खान और ज़हीर खान अपने कमरों की तरफ चले गए तो वजदान अपनी जगह से उठा। नगीना बेगम को बिल्कुल करीब सोफे पर आन बैठा। नगीना बेगम खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। इनकी आंखें अब भी नमी से बोझल थीं। सुबह जा रहा हूँ मोरे। उनके दोनों लरसते हाथ अपने हाथों में थाम कर नहायत नरमी से चूम लिया। नगीना बेगम खामोश है, मगर चादर के पल्लू से खामोशी से आंसू पहुँचे। आप नाराज़ रहेंगी, ये ना मेरा प्लेन ही उलट जाए। वो हल्की सी शरारत से मुस्कुराते हुए बोला था। नगीना बेगम के दिल को एक लम्हे को होल उठा। अल्लाह ना करे मुँह से अच्छी बातें निकाला करो। वो भीगी आवाज़ में तड़प कर बोली, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। वो इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए दिल से दुआ देने लगी। वजदान की शरारत माहौल को हल्का करने का अंदाज़ देख समीन बेगम, यज़दान और हैन सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी शाह से बात हुई थी, वो नरमी से बोला। मैंने इसे बहुत बातें सुनाई। नगीना बेगम ने शदीद हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या बातें? वही क्या आइजल को मज़ीद परेशान किया किसी ने, तो मैं इसे वापस हवेली ले आऊँगा। वो आवाज़ में मुस्लिम सख्ती लाते हुए बोला। हालांकि इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। नगीना बेगम ने परेशानी से समीन बेगम की तरफ देखा, जबकि वजदान मौका गनीमत जानकर समीन बेगम की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर एक आंख मारी।
हाँ बहुत अच्छा किया, यही करना चाहिए था तुम्हें। सिमीन बेगम इसकी चालबाजी और मकसद समझते हुए फ़ौरन इसकी हाँ मिलाते हुए बोली, ठीक किया ना मोरे। वजदा ने बेहद मासूमियत और भोलेपन से पूछा। हाँ लेकिन वो तो आइज़ल को कभी कुछ कहता ही नहीं, इसे झिड़कने की ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी। लेकिन बेगम अपने दामाद की मुमकिन नाराज़गी का सोचकर अब बाकायदा परेशान नज़र आने लगी। हाँ तो अब घर वालों को समझा देगा ना अपने तरीके से कि रहे आइज़ल के साथ, वो बोला तो। नगीना बेगम बगौर अपने बेटे का चेहरा देखा। मुझे लगा तुम मेरा की नाराज़गी के डर से आइज़ल को उसके हाल पर छोड़ दोगे। अब की बार वो शर्मिंदगी और खौफ के मिले जुले तासुर के साथ धीमे से बोली, होती है तो हो जाए नाराज़, अब अपनी बहन को बेहाल छोड़ दूँ, वो बोला तो। नगीना बेगम के चेहरे पर सुकून की एक रमक दौड़ गई। वो मदम सा मुस्कुरा दी। उन्होंने वजदान के बालों में नरमी से हाथ फेरा। कब जाओगे? सुबह तो फ्लाइट है। अब की बार वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पूछ रही थी। आप नाराज़ थी तो नहीं गया, अब नाराज़गी ख़त्म करें तो चला जाऊँगा। हाँ कभी बच्चों से नाराज़ माँ कभी बच्चों से नाराज़ नहीं होती, वो कहते हुए वजदान के कशादा माथे पर मोहब्बत से बोसा दे गए। लेकिन अभी मत जाना, कुछ देर सो जाओ, सुबह फजर के बाद चले जाना। वजदान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। वापस कब आओगे? नगीना बेगम ने सवाल किया तो वजदान ने इनके शानों के गिर्द अपना बाजू फैलाया। इसने यूके से वापसी का रिटर्न टिकट बुक नहीं कराया था। वो कब वापस आएगा ये बात वो खुद भी नहीं जानता था, क्योंकि सब कुछ मीरा को मनाने और वहाँ के हालात पर मुनहसर था। जल्दी आऊँगा, वो सरसरी से अंदाज में बोला। अच्छा जाओ, जाकर आराम करो, फिर बहुत लंबा सफ़र करना है। वो मोहब्बत से वजदान का चेहरा थपथपाते हुए बोली। वो मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठा और कमरे की तरफ आ गया। पुराने तमाम गिले शिकवे तलखियाँ माँ के एक लम्हे से ही ख़त्म हो चुकी थीं। कमरे में आते ही इसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कुराहट लम्हों में मदम होकर गायब हो गई। इसने एक उम्मीद के साथ बिस्तर पर पड़ा फ़ोन उठाया, मगर स्क्रीन पर मीरा का कोई जवाब नहीं था। वो इसके किसी पैगाम का जवाब देने की रवादार तक ना हुई थी। माँ को मनाना तो हमेशा ही आसान होता है, पता नहीं वो कल क्या सलूक करेगी मेरे साथ। इसने एक बोझल ठंडी आह भरते हुए खुद से कहा। एक तरफ सरहद पार बैठी मीरा की शदीद नाराज़गी और सर मैली थी, तो दूसरी तरफ इसे मनाने का अटल जुनून। कोई बात नहीं, मना ही लूँगा। वो यही सब सोचते दिल की तसल्ली देते हुए बिस्तर बदराज हो गए। सफ़र की थकन और जहन पर छाई बेपनाह उलझनों के बीच इसने अपनी आंखें मूंद ली। वो गहरी नींद की वादियों में गुम हो गया। तकरीबन सुबह 5 बजे वो नक्शा तैयार इंतहाई वजी और बावकार रूप में जिनान खाने में नीचे आया, लेकिन नीचे का मंदिर देख के इसके कदम ठटक गया। नगीना बेगम, यज़दान, हुरैन, अन्ना, जावियान, ज़ेर सब के सब बिल्कुल तैयार खड़े थे। इनके चेहरे पर एयरपोर्ट जाने की तैयारी साफ झलक रही थी। यज़दान ने शदीद हैरत और ताज्जुब से सबको देखकर, रात तक तो यही तय था कि वो और यज़दान गाड़ी में निकलेंगे, मगर यहाँ तो पूरा ख़ानदान ही रवानगी के लिए पर तोल रहा था। मैं कोई 17 साल का बच्चा हूँ जो आप सब मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। वो खुफत और शर्मिंदगी से मिलता जुलता चेहरा बनाकर बोला। इसके यूँ सरपटाने पर हवेली का तनाव दम तोड़ गया और सबके लबों पर एक हल्की सी मदम से मुस्कुराहट आ गई। मैं तो जाऊंगी और आइज़ल से भी मिल लूँगी। नगीना बेगम के लहजे में माँ की ममता बोल रही थी। वो बेटी से मिलने को अंदर से तड़प रही थी। वजदान ने आखिरकार हार मानते मुस्कुरा कर सर कम कर दिया। बिल आखिर तमाम गाड़ियाँ सवार होकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। तकरीबन 9 बजे के करीब वो लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मसरूफ़ और पुररौनक लाउंज में मौजूद थे। मीर मालकान में से मुराद मीर और कासिम सुल्तान और कासिम को मुराद मीर और सुल्तान कासिम को रुखसत करने के लिए पहले से एयरपोर्ट में मौजूद थे। दोनों खानदानों के मर्द आपस में नहायत गर्मजोशी से मिल रहे थे और बगल गिर हो रहे थे, मगर सुल्तान और यज़दान के बीच एक अजीब सी घुटन और खामोश झिझक तारी थी। मारुति का हर तल्ख साया इनके दरमियान खड़ा था और नन्हे दावियान को आगोश में ये बेहद खुश और खिली खिली सी लग रही थी। मुराद मीर ने तसल्ली बख्श शफकत भरी मुस्कुराहट से अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया, इसका माथा चूमा। दूसरी तरफ सुल्तान ने भी जावियान को अपनी गोद में उठाया और हंसते हुए से हवा में थोड़ा उछाला। वो यज़दान की वही मौजूदगी से अच्छी तरह वाकिफ था, बस इसने खुद से इसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया। सुल्तान ने प्यार से जावियान के दोनों नरम नाजुक गालों पर अपनी लब रखे तो यज़दान अब खुद पर जद कायम रखते हुए आगे बढ़ा। वो सीधा सुल्तान के सामने आया, बिना किसी हिचकिचाहट के इससे बगल गिर हो गया। सुल्तान ने भी कुछ खुफत कुछ शराफत से इसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। ज़ख्म कैसे हैं तुम्हारे? जब बोलने को कुछ और ना सूझा तो सुल्तान बस यही रस्मी सा सवाल पूछ सका। अब ठीक हैं? यज़दान के लबों पर एक गहरी मायने की मुस्कुराहट आई। यहाँ से सीधा मीर मेंशन का इरादा है हमारा, इसके दोस्त से मिलना है। यज़दान ने जावियान की तरफ इशारा करते और मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर। सुल्तान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट
उभरी। वो यज़दान के इशारे को फ़ौरन समझ गया था कि सुल्तान के बेटे नन्हे बालात से मिलने का जिक्र कर रहा है। कुछ ही देर में कासिम और वजदान अपना बोर्डिंग पास लेकर अंदर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ गए। वजदान ने अंदर जाते जाते एक आखिरी नज़र अपने ख़ानदान पर डाली। अब अगला पड़ाव यूके की सरजमीन और मीरा की नाराज़गी थी। बाकी तमाम अफराद एयरपोर्ट से सीधे मीर मैंशन की तरफ रवाना हो गए। मीर मैंशन का शाहाना और वसीह लाउंज इस वक्त मेहमानों की आमद से चहक रहा था। नन्हा बालात, जो जावियान के मुकाबले में काफ़ी गोल मटोल और सेहतमंद सा बच्चा था, इस वक्त हुरैन की गोद में बैठा खलखला रहा था। पुप्पो का प्यारा सा बेबी हुरैन से गोद में उठाए छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। उसकी गाल थपथपा रही थी। यज़दान एक तरफ बैठा मुस्कुराती आंखों से अपनी बीवी के हसीन रूप को देख रहा था। दूसरी तरफ नन्हा जावियान सरवत बेगम की गोद में। सरवत बेगम अपनी नम आँखों से इससे जावियान का चेहरा तक रही थी और बेहद रंजीदा और जज्बात से मगरूब लग रही थी। महीनों के तवील सदमे और दूरियों के बाद बिलाखिर इस मासूम बच्चे को माँ किया हुआ शुरू ख़ानदान का सुकून नसीब हुआ था। ऐज़ल बेटा, जल्दी खाना लगवाओ, तुम्हारे मोरे और बाबा इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। सरवत बेगम ने लहजे में बेपनाह चाशनी और प्यार करते हुए अपनी बहू को हदायत दी। जी। आयज़ल ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला दिया। किचन की तरफ बढ़ गई। अपनी सास की अचानक तवज्जो, नरमी और प्यार पाते ही इसके बोझल चेहरे पर एक रौनक सी आ गई थी। वो खिली खिली सी लग रही थी। नगीना बेगम के तड़पते दिल को यमुंदर देखकर बेपनाह ढारस और सुकून मिला। वो अपनी बारीक बिन नज़रों से सोफे पर बैठे अपने दामाद शाहजान को देखा। इसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था, ना ही कोई तफिश। वो बिल्कुल पुरसुकून और खामोश बैठा हुआ था, जिससे नगीना बेगम मज़ीद मुतमईन हो गई। वो दरअसल हम चाह रहे थे कि आयज़ल को कुछ दिनों के लिए हवेली ले जाए। मेरा दिल बेटी के लिए ज़रा उदास हो गया था। नगीना बेगम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वो अपनी अच्छी तरह जानती थी कि शाहज़ैन अपनी बीवी को कहीं जाने नहीं देता, मगर फिर भी वो दिल की बात ज़बान पर ले आई। पुरसुकून था बैठा शाहज़ैन। इनकी बात सुनते अंदर ही अंदर बेचैन सा हुआ। इसकी आईब्रो में हल्की सी शिकन उभरी। जी ज़रूर बेटियाँ कुछ दिन आकर रह लें तो माओ का दिल वैसे ही खुश हो जाता। सरवत बेगम ने खुलकर मुस्कुराते हुए फ़ौरन इजाज़त दे दी, मगर शाहज़ैन मुकम्मल खामोश रहा। आयज़ल अपने सुर्ख को दांतों तले काटती हुई शाहज़ैन को देख रही थी, जो मुसलसल इसे घूर रहा था। इसकी नज़रों में हल्की सी खुफगी और हाकमियत का अंसर बिल्कुल वाज़िह था। आयज़ल बेटा, आप ही आज ही जाएंगे? नगीना बेगम ने बेहद नरमी और ममता से कहा, ताकि ऊपर जाकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले। आयज़ल ने घबराहट और में अपनी बारीक उंगलियां मरोड़ी और शाहज़ैन की चुपती नज़रों का मुकम्मल नज़रअंदाज करती हुई तेज़ कदमों से ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। शाहज़ैन अपने लब भींच कर सावराना घुट भर कर रह गए। चंद लम्हों के बाद तमाम अफराद सोफे से उठे और कशादा डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब वो नीचे आई तो मुकम्मल तैयार थी। आई ऑफ वाइट रंग का कढ़ाई वाला खूबसूरत सा जोड़ा पहने, खुले बालों के साथ भी यूँ लग रही थी जैसे यहाँ से जाने के लिए बेसब्री से मुंतज़िर हो। वो धीमे कदम उठाती हुई आई और सीधी शाहज़ैन के साथ वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई। सभी अफराद इत्मीनान से खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। मेरा सूटकेस ले आई, ऊपर से काफ़ी भारी था। वो शाहज़ैन की तरफ देखते हुए बगैर धीमे से बोली। वो अपना तमाम ज़रूरी सामान पैक करती हुई अपना सूटकेस ऊपर कमरे में छोड़ आई थी। कितने सालों का सामान पैक कर लिया, जितना भारी है। वो खुफ की और तब से बोला। 2 हफ्तों का बने आयत मदम आवाज़ में बोली। 1 हफ्ते बाद लेने आ जाऊँगा बस। वो मुकम्मल अंदाज में बोला, लेकिन मैं वो कुछ एतराज़ करनी ही लगी थी कि इससे पहले शाहज़ैन ने इसकी बात बीच में ही काट दी। खाना खाओ, मेरी सुरमई परी। वो इसके चेहरे को देख कर नरमी से बोला। वो सर झटकती खाना खाने लगी थी। सबके साथ गपशप करने और कुछ देर बैठने के बाद वो अब ड्राइंग रूम से निकलकर वसी कार पोर्च में खड़े थे, जहाँ गाड़ियाँ सीधी तैयार खड़ी थी। सीधा सहरान जाओगे? मीर ने यज़दान की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, अभी कुछ घंटों के बाद निकलेंगे, यज़दान ने जवाब दिया। कह रहा था फ़िलहाल खान हाउस जाकर कुछ देर आराम देने का था, क्योंकि बच्चे और हुरैन के साथ मुसलसल इतना लंबा सफ़र किसी की भी तबीयत और थकन के लिए बेहतर ना था। प्रवास भरने के बाद प्लेन को फ़िज़ा में उड़ान भरे 3 घंटे से ज़ायद का वक्त बीत चुका था। वजदान ने लंदन पहुंचने से पहले एक बार अपना फ़ोन ऑन करके चेक किया, मगर मीरा की तरफ से ना तो कोई मैसेज आया, जवाब आया था, ना ही कोई कॉल मौसूल हुई। तो वह गहरी बोझल सांस भर कर रह गया। अपने पास बैठे कासिम खान के साथ मुसलसल हल्की फुल्की बातें करते अपने जहन का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहा था। कासिम को फारिया ने नगीना बेगम की बातें और मीरा का रवैया सब बता दिया था, मगर वजदान के सामने मुकम्मल अनजान बने बैठे थे, जैसे इन्हें किसी बात का इल्म ना हो। वजदान का अपनी माँ के डर या खदशात के बिल्कुल बरअक्स बगैर किसी झिझक के यूके के लिए परवाज़ भर लेना ही कासिम के लिए सबसे बड़ी तसल्ली का बाइस था। कब तक रहोगे? कासिम ने इंतहाई सरसरी और नरम से लहजे में पूछा। जब तक आपकी बेटी बर्दाश्त कर ले। वजदान ने अपने दिल में सोचा, मगर ज़बान से बस इतना बोला, ज़्यादा नहीं रह सकूँगा। कारोबारी मालूमात में
बहन कुछ वो मदम और बोझल आवाज़ में बोला। कासिम साहब ने हदूद दर्जे समझने वाले अंदाज में इस बात में सर हिलाया। वो वजदान की पुरवकार शख्सियत उसकी आंखों की है और इसके बेपनाह जिम्मेदार वफादार होने से ही अंदर बेहद मुतासिर थे। जैसे जैसे वो उसको करीब से समझ रहे थे, इनके दिल में इसके लिए इज़्ज़त अरमान बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 8 घंटों की तवील थका देने वाली परवाज़ खत्म हुई और जहाज़ ने लंदन एयरपोर्ट की ज़मीन को छू लिया। बोर्डिंग और कस्टम्स का मामला तय करने के बाद जब एग्जैक्ट गेट से बाहर आए तो जहान विशाल पहले से इनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे, मगर वो नज़र न आई। वजदान की शहद आंखों में बेचैन होकर ईद नजरें घुमाई, मगर वहाँ मेरा खान हाउस में अपनी मां नगीना बेगम की गोद में सर रखे अफजल आराम से मुस्कुरा रही थी। वो मेंशन के बदले हुए हालात के बारे में तफसील से बता चुकी थी कि किस तरह रैन किए वहाँ से जाते ही सबका रवैया आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया था, मगर घर में छाई कशीदगी ख़त्म हो चुकी थी। नगीना बेगम भी बेटी के मुंह से बातें सुनकर काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आ रही थी। इसी पुरसकून लम्हे में हाजिर का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर शाह का नाम चमकते देख इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी माँ की गोद से उठकर फ़ोन अटेंड करती हुई कमरे से बाहर आदारी में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। इसने फ़ोन कान से लगाते हुए बेहद प्यार और मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। कब तक निकलोगे सरान के लिए? शाह ने संजीदगी से सवाल किया। थोड़ी देर में। आयज़ा ने इसकी संजीदगी पर हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम हवेली से बाहर कदम भी नहीं निकालोगी, ना किसी रिश्तेदार के घर जाओगी, ना ही इसी बाजार में। इंतहाई अटर और तहमकाना लहजे में हुक्म साबित कर रहा था। एक हफ्ते बाद मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अजय ने फ़ौरन मुंह बसूर लिया। मैं एक बार भी नहीं रहने गई हवेली, अब जा रही हूँ तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं आप? वह शदीद खफगी और शिक्के से बोली। गई थी एक बार, अगवा होकर मेरे 14 तोबक रशम कर दिए थे। शाह ने इसे फ़ौरन माजी याद करवाया, लेकिन अब की इसके कड़क लहजे में मदम सी नरमी और फिक्र डराई थी। अजय ने शदीद खुफ़त से अपनी ज़बान दांतों तले दबाई। हाँ, जैसे मैं जान बूझ कर अगवा हुई थी। वो अब के खुफगी के साथ साथ हल्के से गुस्से में तब कर बोले। फिर जिद दिखाते हुए मज़ीद इजाफा किया, मैं तो बाज़ार जाऊंगी, तुम सरान नहीं जाओगी ही नहीं, मैं भी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। शाह ने अब के गुस्से से कहा। अच्छा, नहीं जाऊंगी बाज़ार? आइज़ल इसकी धमकी सुनकर घबराते हुए फ़ौरन सीधी हुई। गुड, शाबाश मेरी सुरमई पर। इसके लहजे में लम्हों में फतह और नरमी लौट आई। आइज़ल ने सर आ भरी। आप कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाने लगे हैं। वो अपने नुमाइशी गुस्सा दिखाती हुई बोली। बस चुपचाप मान लिया करो। मेकअप रूम में शीशे के सामने बैठा शाह मुस्कुराते हुए बोला। शूट से पहले हेयर स्टाइलिस्ट बड़ी तवज्जो से उसके गहने बालों को सेट कर रही थी। वो उसका ध्यान मुसलसल शाह की पर्सनैलिटी के साथ सच की बातों पर भी पूरी तरह जमा हुआ था। आप मेरी बात मानेंगे? 2 हफ्ते के बाद आएंगे बस। वो अब अपनी बात पर अड़ते हुए बोली। शाह ने आईने में इस हेयर स्टाइलिस्ट पर एक नज़र डाली। किसी और की मौजूदगी की वजह से वो कोई बात फ़ोन पर बोल ही नहीं सकता था। ये ज़्यादा है। वो बस इतना ही बोल सका। बिल्कुल ज़्यादा नहीं, वो सख्ती से बोली। मैं मान रही हूँ ना आपकी बात कि हवेली से बाहर नहीं जाऊँगी, लेकिन 2 हफ्ते तो रहूँगी ही रहूँगी। अब वो इतने हक और जिद से बोली तो दूसरी तरफ शाह के दिलकश लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। देखते हैं वो आईने में अपने पुरकशिश अक्स को देखते हुए नवाबाना अंदाज में बोला। देखते रहे, मैंने जो कहना था कह दिया। आइज़ल ने इतनी बात कहकर फ़ोन फ़ौरन काट दिया। दूसरी तरफ शाह फ़ोन हाथ में लिए इसकी मासूमाना जिद पर मध्यम सा हंस दिया। घर पहुंचते ही फारिया मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। वजदान ने सलाम करते हुए एहतराम से सर थोड़ा झुकाया। फारिया ने बेसाख्ता इसकी पीठ पर शफ़क़त से हाथ रखा। ओ बेटा, सफ़र ठीक रहा? उन्होंने इसकी थकन से बोझल आंखों में देखते हुए पूछा। जी। वो एक नई मदम मुस्कुराहट के साथ बोला। मेरा बाहर आओ बेटा, बाबा आ गए हैं। फारिया ने थोड़ी बुलंद आवाज़ में लाउंज से सदा लगाई। वजदान खामोशी से नज़रें घुमाकर इस खूबसूरत घर को देख रहा था जिसे वो पहले ही वीडियो कॉल्स और तस्वीरों में देख चुका था। और यहाँ तक वो ये भी जानता था कि मेरा का कमरा कौन सा है। वो खामोशी से लाउंज के नम सोफे पर आन बैठा। उसी लम्हे मेरा कमरे का लकड़ी का दरवाज़ा खुला। वजदान ने बेख्तियार गर्दन उठाकर इसकी तरफ देखा। वह पिंक रंग के आरामदेह लाउंज वेयर में थी। फुल बाजू घुटनों तक आती लूज शर्ट और वैसे ही ट्राउज़र पहने, बालों का बेपरवाही से जोड़ा बनाई। इसने वजदान की आमद के लिए बिल्कुल भी कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। वो वजदान के वजूद का मुकम्मल नज़रअंदाज करती सीधी कासिम साहब के करीब आई। कासिम साहब ने गर्मजोशी से उठकर बेटी को अपने सीने से लगाया। हाउ वाज योर फ्लाइट? आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा ने कासिम से नहायत सरसरी से अंदाज में पूछा। गुड, इट वाज गुड। कासिम साहब के सीने से अलग होते हुए दोबारा बोली। बाबा, आई हैव गॉट अ पेपर टुमारो। कासिम साहब ने वो इसकी वजदान की तरफ भरपूर बेरुखी और सदमेरी को देखा।
अब वो पेपर का बहाना बनाकर वापस कमरे में खिसकना चाहती थी। यकीनन खाना खा लो पहले, फिर कर लेना बाकी तैयारी। कासिम ने हदूद दर्जा नरमी से टोका। ओके, आई विल कम व्हेन फूड इज सर्व्ड, वो सर्द लहजे में कहती वापस कमरे की तरफ मुड़ गई। वदान का पहले से बुझा हुआ दिल मजीद गहराइयों में डूबने लगा। वो कमरे में जाती हुई दरवाज़ा धड़ से बंद कर गई। सबके सामने मेरा के इस कदर खुलेआम नज़रअंदाज करने पर वदान बुरी तरह झिमकर रह गए। आहिस्ता से आई और इसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी। बहुत गुस्से में है शायद, इसने वदान से इंतहाई मध्यम आवाज़ में कहा ताकि बाकी ना सुने। पता नहीं क्या हो गया था मूरे को। शदीद बेबसी और अंदरूनी कड़न से बोला। कासिम ने परेशानी से फारिया को देखा। बेटी का अंदाज इन्हें पसंद नहीं आया। इसे समझा कर बाहर लाओ। शाल ने चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। रहने दो अंदर ही वह संजीदगी और तलखी से बोला जितने तेवर वो अभी दिखा कर गई थी। वह जान को कोफ्ता बाहर आकर कहीं सबके सामने कोई नया तमाशा खड़ा ना कर दे। चंद ही देर में डाइनिंग टेबल पर फारिया इफ्तार जोहान ने मिलकर खाना लगा दिया। खाना खाओ बेटा, लंबा सफ़र था, यकीनन भूख लगी होगी तुम्हें, फारिया ने बेपनाह नरमी और से कहा। मुख्तलिफ डिशें वजान की तरफ बढ़ाने लगी। खामोशी से अपनी प्लेट में चीज़ें डालता गया। मेरा खाना खाने के बाद खाने भी बाहर नहीं आई थी। वजान का दिल अचानक हर चीज़ से खाने से और माहौल से बिल्कुल उचाट सा हो गया। वो महज सबकी खातिर बेदरी से प्लेट में नवाले तोड़ता रहा, जबकि इसकी आंखों में शदीद तपिश और गहरा मलाल उतर आया। खाने के बाद फारिया बेगम ने जब चाय को पूछा तो वदान ने नहायत अदब लेकिन साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। इसका दिल इस वक्त चाय या किसी दूसरी चीज़ की तरफ माइल नहीं था। सबकी मौजूदगी में बिला झिझक उठकर सीधा इसके कमरे तक भी नहीं जा सकता था। सबके सामने ये बात कितनी अजीब लगती, और अगर वो इससे मिलने और बुलाए बगैर यूं ही वापस चला जाता तो मेरा इसे ज़िंदगी भर ना बख्शती। इसकी इस कोताही को अपने एक गुस्से का जवाब बना लेती और इसी उलझन और परेशानी की कैफियत में सोफे पर बैठा अंदर ही अंदर यही सोच रहा था कि दीवार को कैसे गिराए और इस नवाबजादी को बनाने का सिलसिला कहाँ से शुरू करे। और जान कुछ लम्हे सोचने के बाद बिलाखिर सोफे से उठ खड़ा हो। मैं चलता हूँ वतन और बोझल आवाज़ में बोला। फारिया ने शदीद परेशानी और तजबज़ब के आलम में से देखा। यहीं रहो बेटा, किधर जा रहे, मिलने आता रहूँगा, करीब ही है। अगर वो एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला अच्छा रुको मैं मेरा को बुलाती हूँ। जान ने अब के कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से वहीं खड़ा रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि मेरा इस वक्त जिस मूड और तेवरों में थी वो इसके साथ हरगिज़ नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी वो खामोशी से इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। फारिया तेज़ी से कदम बढ़ाती मेरा के कमरे की तरफ चली गई। कासिम साहब खामोशी से सोफे पर बैठे रहे। मीरा का ये रवैया, ये बेरुखी इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, मगर वो इनकी बेटी थी, सो इस मौके पर खामोशी में ही बेहतरी और भलाई थी। आखिरकार फारिया की अच्छी खासी डांट डपट और सख्त बातों के बाद वो गुस्से से भरे कमरे से बाहर आई। वो तुम्हारा शोहर है, ये क्या तरीका है, तुम में बिल्कुल तमीज़ नहीं, क्या सोच रहा होगा कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। फारिया बेगम ने कमरे में ऐसी कई खट्टी मीठी बातें इसकी गुज़ार की कि वो शदीद उकता कर बाहर निकली थी। किसी का भी लिहाज किए बगैर वो बिना किसी सलाम दुआ के सीधी वजान के सामने आ खड़ी और इंतहाई सपाट सर्द लहजे में बोली, मेरा सुबह पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। सबके सामने इस कदर तीखे और सपाट जवाब पर जवदान का सफ़ेद चेहरा खफत और शर्मिंदगी और जब से लम्हों में सुर्ख पड़ गया। मेरा कासिम साहब ने तंबे बड़े लहजे में बेटी को टोका तो मेरा ने खुफगी से अपने जबड़े भींच लिए। वो जान को ऐसी चुपती नज़र से घूर रही थी जैसे कह रही अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी जाओ यहाँ से सो के। वह जान के लबों से बस इतना ही निकल सका। इसने मजीद एक लफ्ज़ के बगैर अपना रुख मोड़ा और तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ गया। कासिम साहब को मीरा के इस गैर मुतवक्किल रद्द अमल पर शदीद गुस्सा आया था। वो वजदान की शराफत और वफादारी से मुतासिर थे। अपनी बेटी के इस रवैये पर तल होकर बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जोहान भी खुफ़त से अपना कोट पहना और वजदान के पीछे बाहर निकल गया। ये क्या बदतमीज़ी है मीरा, तुम हद से ज़्यादा सर चढ़ गई हो। फारिया का जब जवाब दे गया तो वो सख्त लहजे में बोली, आपको नहीं पता, डोंट यू रिमेंबर इनकी मामा ने मुझे क्या क्या कहा था। मीरा के अंदर का गुबार भी फट पड़ा और वो गुस्से से बोली, वजदान ने तो कुछ नहीं कहा था ना, 100 बातों की एक बात अपनी माँ की बातों के बरखिलाफ़ फ़ौरन आया इधर। फारिया ने इसे सख्ती से डांटा, बट ही लाइड, इन्होंने झूठ बोला, इतनी देर उन्होंने झूठ बोला मुझसे। मीरा की आंखों में अब शिकवे और ज़ब की नमी तैरने लगी। क्या किसी वजह से बोला होगा, और वजह मीरा के अलावा सब जानते थे। फारिया बेगम सख्त लहजे में समझाया, इट्स नॉट अबाउट मम्मी, आना या ना आना, मैंने कभी इन्हें इस तरह मजबूर करके नहीं बुलाया। आई अंडरस्टैंड, इनका घर है, वहाँ बिजनेस है, सब कुछ इधर ही है। मैंने कभी नहीं कहा सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस
बस आज अभी आ जाएं। बट वाज लाइंग, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मेरा भी अपना ज़ब्त खोते अब की बार चीखी थी वो रूठते हुए अपने कमरे में जाकर इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर गई कि इसकी गूंज पूरी राहदारी में सुनाई दी। कमरे में बिस्तर पर लेटे खामोशी से छत को घूरते कासिम साहब खुले दरवाजे से बाहर की तमाम तल्ख आवाज़ें अंदर आ रही थी। इनका दिल बेटी के इस रवैये पर रंजीदा था। फारिया ने एक शररबार निगाह बंद दरवाजे पर डाली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है, इतना सर चढ़ाने की क्या ज़रूरत थी इसे। फारिया कमरे में आते ही अब कासिम साहब पर गरजने बरसने लगी थी। बेटी का सारा गुस्सा इन पर ही तो उतरेगा। कासिम ये बात अच्छी तरह जानते थे, फिर भी उन्होंने फारिया को यूँ देखा जैसे उनके दिमाग में कोई चोट लगी हो। मेरा क्या कसूर है, मैं तो इधर ही था ही नहीं जब इसकी सास का फ़ोन आया था। कासिम साहब ने नहायत धीमी आवाज़ में सफाई दी। बेटी को बिगाड़ने में सारा कसूर आपका है। फारिया इन पर शररबार निगाहें डालते हुए आखिरी हुक्म सुनाया तो कासिम साहब ने मज़ीद बहस के बजाय खामोशी इख्तियार करने में ही आफियत जानी। तुम पर ही गई है। कासिम ने दिल में सोचा। वजान का घर वहाँ से कुछ ही फासले पर था। इसने अभी कोई गाड़ी नहीं ली थी, इसलिए वो पैदल ही इस तरफ चलने लगा। जोहान भी इसकी कैफियत को समझते उसके साथ साथ वॉक कर रहा था। वहाँ सब ठीक है? जोहान ने सरसरी अंदाज में पूछा। ठीक है, वजान ने तनासिब और संभले हुए लहजे में जवाब दिया। आंटी का फ़ोन आया था यार, तुम्हारी मोरे का तब ही से मूड ख़राब है। मीरा का वो बस हर्ट है। जोहान ने सच्चाई बयान करना बेहतर समझा। जानता हूँ मोरे कुछ परेशान थी हालात की वजह से, वजान ने मध्यम आवाज़ में कहा। मैं समझता हूँ, लेकिन मीरा के लिए सब अचानक था, वो किसी मामले से वाकिफ़ नहीं थी। जोहान ने एक गहरा सांस लिया। 17 साल की बच्ची है यार, अभी तो इसकी शादी करना भी नहीं बनता था। इतनी सब चीज़ों को वो भी मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ लाला, वजाहत की ज़रूरत नहीं। वजान अब की बात नरमी से बोला। मैं इसे देख लूँगा। वो मदम मुस्कुराहट के साथ बोला तो जोहान कुछ पुरसुकून हुआ। बातों ही बातों में दोनों घर के सामने पहुँच गए थे। अंदर आए वजान ने खुश दिली से दावत दी। नहीं, फिर सही। जोहान इससे गर्मजोशी से बगल गिर होते हुए वापस मुड़ गया। इसकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन सेंड कर दे, मैं कल से पिक कर लूँगा। वजदान ने कुछ झिझकते हुए कहा तो जोहान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। कमरे में बैठ की पुश से टेक लगाए बैठी मीरा एक के बाद एक दूसरे नोट को सीधी झंझलाहट से उलट पलट कर देख रही थी, मगर पढ़ाई में ज़हन बिल्कुल नहीं लग रहा था। आंखें नम थी और इनमें तपे हुए आंसुओं को इसने बेदर्दी से कानों पर रगड़ कर साफ़ किया। सफ़ेद शर्ट और नीली पैंट में बेहद हैंडसम और वजीह लग रहा था। इस एक पल के नृत्य से देखते ही मेरा के दिल ने धड़कना भूल कर एक अजीब सी बीट मिस की थी। इस अजीब सी बेचैनी से तंग आकर उसने सारे नोट्स उठाकर साइड टेबल पर पटक दिए। झूठा वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई बिस्तर पर लिहाफ तान कर लेट गई। पर जैसे ही आंखें मूंदी, इसकी पुरकशिश बातें, इसकी बेबाक मुस्कुराहट और इसके लहजे की तपिश मेरा के दिमाग में गर्दिश करने लगी। इसने शिद्दत जज्बात से एक बार फिर बेदर्दी से अपने सुर्ख गालों पर बहने वाली नमी को साफ कर गई।